Narayan. In this video, I have picked up a story from Yoga Vasishtha Maharamayana. This is a part of a discourse between Brahmadev and Suryadev. The story is narrated by Suryadev to Brahmadev, and this is about the fictitious Ahalya and the fictitious Indra. And these two characters are different from the famous story of Indradev and Ahalya, the wife of Rishi Gautam. So these two are different. And the primary theme of this story is about the capacity of the mind to penetrate the object of its thought and become one with its thought. So, for example, if my mind thinks on a single person or on a single object, my mind so penetrates it that I actually forget my body itself. The mind forgets its bearer. The body bears the mind. So my mind becomes one with the thought on which my mind dwells upon. And then what happens is I forget my body, and then these become impressions on my mind. And when we all die, we take these impressions in our mind. Mind here is referred to as the mirror of the soul. So when we all die, the soul leaves the body like a bird, and it takes away all those impressions along with it. And those impressions will again search for a new body to fulfill those desires. So the message here is we have, in order to get rid of the cycle of birth and death, transmigration, we have to reduce the number of impressions, or we, at best, what we can do is we can improve the quality of impressions that we undertake. We allow our mind to internalize, and we have to cut down the reminiscence of our life, what happened to us in the past. There are many events that actually hit us and they stay in our mind for long. So we have to cut down our reminiscence so that we can be free from all those thoughts, and we can allow virtuous and pious thoughts to come in, so that at least we can control the quality of impressions that go in. And we can only get rid of this transmigration, the cycle of birth and death, when the mind is free of any impressions. It is absolutely free, like the clear firmament of the sky. So this is the clear message. ये जो कथा, सुंदर कथा है, मैंने ली है योग वशिष्ठ महारामायण से। बहुत ही सुंदर ये ग्रंथ है, और ब्रह्मदेव और सूर्यदेव के बीच का ये संवाद है, और सूर्यदेव ब्रह्मदेव को ये कथा सुना रहे हैं। और ये ये इंद्र और अहल्या की कथा है। ये वो इंद्र और अहल्या जो इंद्रदेव और ऋषि गौतम की पत्नी अहल्या, उनसे ये अलग है, ये उनसे दोनों अलग है। तो इन दोनों की कथा है, और ये कथा का मेन, इसका जो थीम है, मैसेज है, वो ये है कि हमारे मन की जो शक्ति होती है एक सोच को पकड़ के रखने की और सोच के अंदर जाने की, तो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर मैं एक ऑब्जेक्ट पे, एक सोच पे या एक व्यक्ति पे इतना ध्यान दूं, इतना उस पे ध्यान देता ही रहूं कि मैं अपने देह का भान ही भूल जाऊं, तो मेरा मन, उसका जो धारण किया हुआ शरीर है, शरीर मेरे मन को धारण करता है, तो वह अपने धारक को ही भूल जाता है, और मन केवल और केवल उसमें ही आसक्त होता है, मेरे विचार में, जो व्यक्ति है या कोई वस्तु है उसमें। ये बहुत ही हमारे लिए अच्छा नहीं है, हानिकारक है, क्योंकि ये जो हम बहुत सोचते हैं गहराई से, तो वो सब सोच हमारे माइंड में इम्प्रेस हो जाती है, छप जाती है, और माइंड को यहाँ पे आत्मा का प्रतिबिंब कहा गया है, मिरर कहा गया है। तो अगर हमारे मन पे इतनी सारी छाप पड़ जाएगी, इतने सारे कर्म हम करते हैं, इतनी सारी घटनाएं हमारे जीवन में घटती है, तो अगर ये मन में छप गई, तो हम अगर मृत्यु जब प्राप्त करते हैं, मृत्यु के बाद फिर ये जो मन है, आत्मा को मन का प्रतिबिंब है, तो आत्मा जब निकलती है तो वह ये विचार को साथ में लेके जाती है, और फिर वो विचार, उसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए फिर उसको एक शरीर की आवश्यकता होती है, तो फिर से वो शरीर ढूंढने का प्रयास आरंभ करती है। और इस ऐसे करने से फिर हम छूटेंगे ही नहीं, हम फिर से जन्म लेंगे। अगर आपको सुख भी मिलता है तो दुख के बिना आप कोई भी रह ही नहीं सकता है, आपको दुख तो होगा ही, कितना भी सुख हो, दुख तो आएगा 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 ही। ये तो
असंभव है कि दुख के बिना कोई भी जीव जी सकता है। तो इसीलिए ये मैसेज, ये कथा दे रही है कि हमें हमारे मन के अंदर जो घटनाएं छप जाती है, जो कर्म किए हैं वो छप जाते हैं, विचार छप जाते हैं, उसको हमें काट के रखना है, उसको निकाल बाहर करना है, कम से कम आए। या तो हम ये प्रयास कर सकते हैं कि जो विचार आए वो अच्छे आए, कि अगर अच्छे हैं तो हमारा अगला भाव, अगला जो जन्म होगा वो अच्छे कुल में होगा, अच्छे ऊपर के वर्ण में होगा, या फिर हम आगे कुछ अच्छा काम करेंगे, हम उस जन्म में थोड़ा पवित्र और होंगे और हम भगवान के और समीप जाने का सामर्थ्य रखेंगे। और हमें जो हमारी याद शक्ति है, पुराने जो घटनाएं जीवन की जो हमारे जीवन में घटती है, कभी कभी ऐसी घटनाएं होती है कि छप जाती है, उसको हमें निकाल के बाहर फेंकना है। तो ये इसका सुंदर मैसेज है। ये कथा ऐसी है कि सूर्यदेव ब्रह्मदेव को कहते हैं कि एक बहुत ही प्राचीन काल में इंद्रद्युम्न राम नाम के एक राजा थे, हुआ करते थे, और उनकी पत्नी का नाम भी अहल्या ही था, और बहुत ही सुंदर मुख वाली थी, चंद्रदेव के समान सुंदर मुख था, और रोहिणी जैसी सुंदर उनकी काया थी, पूरा शरीर, चंद्रदेव की पत्नी रोहिणी तो इतनी सुंदर थी, और संपूर्ण वैभव और लक्ष्मी सब कुछ था उनके पास में, राज्य था, और स्वयं रानी थी, तो उनके पास तो सब कुछ था। और उनको ये जो इंद्रदेव और ऋषि गौतम की जो अहल्या पत्नी है, उनकी कथा इनको, ये अहल्या को स्मरण थी, इनको याद थी, तो उनको वो सोचती रहती थी, उनका नाम भी अहल्या था, और उनकी प्रेम कहानी सुन के इनको भी ऐसा विचार आता है कि मेरे लिए भी कोई इंद्र होगा। हालांकि उनके पति का नाम ही इंद्रद्युम्न है, मगर उनको बाहर वाले इंद्र के में अधिक रस पड़ गया था, और वही राज्य में एक ब्राह्मण का पुत्र, उसका नाम इंद्र था, और ये जो इंद्र था वो बहुत चतुर था और थोड़ा आवारा टाइप का था। तो उनकी उनका चरित्र इन्होंने सुना था, मगर उनमें उनका मन रम गया, और इंद्र के बारे में ही सोचने लगती थी, और धीरे धीरे बहुत ही उनकी सोच गाढ़ होने लगी, बहुत ही रहस्यमय होने लगी, और उसमें ही वह रमी रहती थी। और उनकी जो दास दासियां हैं वो भी सोचती थी कि ये रानी सोच क्या रही है, उनको कुछ पता नहीं चल रहा था। और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि वह अंदर ही अंदर बहुत विलाप कर रही हो ऐसा प्रतीत होने लगा। वह खाना भी कम खाती थी, बहुत ही अकेले अकेले में ही रहना उनकी पसंदगी थी, और राजा से भी नहीं मिलती थी। और फिर इतना बढ़ गया कि वो एक अकेले अकेले बैठे बैठे वो बात करती रहती थी कि भाई इंद्र आप आइए, मेरे पास आइए, यहाँ पे बैठिए। तो फिर वो बोलने लगी धीरे धीरे, तो उनकी दासियों को पता चला कि हाँ, ये इंद्र जो हमारे राज्य में जो ब्राह्मण का पुत्र है उसके बारे में सोच रही है। तो उनको सभी को पता चला, उनकी जो खास दासी थी उनको ये देखा नहीं गया कि मेरी रानी अभी ऐसे ही हुआ तो वो खाएगी नहीं, तो वो क्या करेगी, वो मर ही जाएगी। और उनकी दशा देख के उनको उन पर दया आ गई, तो वो फिर रानी को कहती है कि आप चिंता मत कीजिए कि मैं इंद्र को लेकर आती हूँ ऐसे भी। और वो फिर ब्राह्मण के घर पे जाती है, इंद्र से मिलती है वो दासी, और जैसे तैसे उनको मना कर लेके आती है, और इंद्र इनको मिलते हैं, और ये भी तब तक एकदम श्रृंगार में आ जाती है, श्रृंगार कर लेती है, अपने शरीर पे आभूषण पहन लेती है, सुंदर हो जाती है, और इंद्र का स्वागत करती है। इंद्र भी मालाएं पहन के आए हैं, और दोनों एक लव एट फर्स्ट साइट जो बोलते हैं, दोनों एक दूसरे को देखते ही प्रेम में ही पड़ गए। और दोनों उसी राज्य में, वहां पर उनके जो अपार्टमेंट था, उनका जो महल था, रानी का महल, एक स्त्रियों का अलग ही एक महल हुआ करता था, तो उसी में वह रहने लगे और प्रेम विलास में मग्न होने लगे। इतने बहुत ही दोनों एकदम समीप आ गए, और राजा से मिलते ही नहीं थे। फिर राजा को शंका हुई कि राजा फिर देखने के लिए चले जाते थे, और कभी कभी वो उनको देखते थे रानी को, कि रानी एकदम प्रफुल्लित है, मगर उनको देख के प्रफुल्लित नहीं होती थी, और वो अकेली अकेली मुस्कुराती थी, हंसती थी। तो राजा को कुछ शंका तो गई, फिर उन्होंने कुछ पता किया कि ये क्या चल रहा है। उन्होंने जासूस भेजे, और
उनको फिर पता चला कि भाई ये इंद्र नाम का एक ब्राह्मण है, उनके घर में आके रह रहा है और उनसे इनका प्रेम विलास चल रहा है। तो उनको बहुत ही क्रोध आया राजा को कि मेरी पत्नी रानी है और ऐसा आपने कर दिया है। तो उन दोनों को फिर बाहर लाए और फिर उन दोनों को दंड दिया। पहला दंड तो ये था कि कठोर ठंडी का समय था और उसमें उन दोनों को ठंडे पानी में डाला, और जैसे ही ठंडे पानी में डाला तो वो दोनों को कुछ हुआ ही नहीं। वो राजा देख रहे थे, कुछ कुछ नहीं हुआ उनको, बल्कि ये दोनों एक दूसरे को ही देख रहे थे, एक दूसरे में ही खो गए थे और एक दूसरे में इतना एकत्व हो गया था कि वो और कुछ प्रतीत ही नहीं कर पाते थे, और उनको ठंडा पानी तो उसको कुछ असर ही नहीं कर रहा था। तो आश्चर्य हो गए थे। फिर दोनों को बाहर निकाला, फिर एक गरम भट्टी थी, उसके ऊपर एक फ्राइंग पैन रखा, उसके ऊपर दोनों को रखा, और उधर भी राजा ने देखा कि इनको कुछ असर ही नहीं हो रहा है, ये कुछ नहीं हो रहा है, शरीर जल रहा है मगर ये इनके मन पे कुछ असर ही नहीं हो रहा है, कुछ चीखे नहीं, कुछ प्रतिक्रिया नहीं कि मुझे यहाँ पे पीड़ा हो रही, कुछ नहीं। वो एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे में ही रमे हुए हैं, और इनको कुछ दूसरा कुछ दिखता ही नहीं था, कुछ आभास ही नहीं हो रहा था। बहुत ही विचित्र इनका प्रेम हो गया था। और फिर उन्होंने बाहर से फिर हाथी के साथ, उनको चेन के साथ दोनों को बांधा, सोचा कि इससे कुछ उनको भान में आया। तो उनको भी वो घसीटते गया हाथी, और फिर भी वो घसीटते चले गए, मगर इन दोनों को एक दूसरे को ही देख रहे थे। और जहाँ पे ऐसा अवसर था कि देख नहीं पाते थे, तो मनोमन एक दूसरे को देख लेते थे। ऐसा वर्णन है कि इंद्र अपने मन में अहल्या को ही देखता था, अहल्या अपने प्रेमी इंद्र को ही देखती थी मन में, उसके सिवा और कुछ दिखता ही नहीं था। फिर उनको बाहर निकाल के उनको बहुत ही रॉड चाबुक से मारा, फिर बहुत दूसरे 2-3 शस्त्र से मारा कि उससे कुछ उनको भान आए। फिर भी कुछ नहीं हुआ, और वो इंद्र उनसे कहने लगा, राजा इंद्र ने इंद्रद्युम्न राजा से कहा कि आप हमें कितना भी मार लो, हमें कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मन जो है वह किसी का दास नहीं होता है। ऐसा कौन पुरुष है, आप मुझे बताइए। ऐसा तो आपने देखे होंगे कि जो अपने कर्मों को बदल लेता है, मगर ऐसा कोई महानुभाव, महान मनीषी मुझे ऐसा बताइए कि जो अपने मन के विचारों को रोक सके। वो ऐसा कोई आज तक जन्मा ही नहीं है। ऐसा कोई राजा तो नहीं है, ऐसा कोई देव भी नहीं है कि हमारे मन को रोक सके, हम हमारे मन के विचारों को। यह भी बहुत विचित्र प्रश्न है। तो फिर वो कहता गया कि आप हमें अगर मारेंगे तो ऐसा ही हो, हमें लगेगा कि आप किसी परछाई पर वार कर रहे हैं, परछाई पे वार करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप हमको, हम दोनों को, हमारा शरीर से आत्मा अलग कर देंगे, यानी हमारी मृत्यु भी कर देंगे, तो भी आप शरीर पर ही वार करेंगे, आप मन को, हमारे मन को कैसे जीतेंगे। तो बॉडी, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं, बॉडी इज अनसब्सटैंशियल, बॉडी अनित्य है, और आत्मा है वह नित्य है। तो प्रहार जब वो बोलते हैं, वो करेंगे, आप मुझे प्रहार करेंगे, तो ये शरीर तो अनित्य है। फिर वो कहते हैं कि होना और ना होना, ये दो परिस्थिति है, वो शरीर को लागू पड़ती है, आत्मा को नहीं। और आत्मा ही मेरा मन है, और यही मेरी आइडेंटिटी है, यही मेरा एक पर्सनालिटी है, इसी से तो मैं पहचाना जाता हूँ। शरीर तो क्षणभंगुर है, उसको तो आप भस्म भी कर दे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप कितना भी प्रयास कीजिए, तो मेरे लिए तो मैं जहां देखता हूं मुझे अहल्या ही दिखती है, और जैसे भवानी माँ कैलाश पर विराजमान है, वैसे ही अहल्या मेरे मन के मंदिर के मस्तिष्क में ऊपर टॉप पे बैठी है। और अगर आप अहल्या को पूछे तो उसके लिए भी वो जहां जहां देखेगी उसको इंद्र, मैं ही दिखूंगा उनको, और कुछ हमको प्रतीत ही नहीं हो रहा है। और यही मन का सामर्थ्य है कि इसके, आप मन को नहीं जीत सकते। आप हमारे शरीर को मार देंगे, मगर मन को कैसे जीतेंगे। यू कैन किल माई बॉडी, यू कैन नॉट किल माई स्पिरिट। स्पिरिट इज द सोल, द माइंड। वो आप मुझे कैसे मार सकते हैं। तो ये बहुत ही गहरा एक ज्ञान ये इंद्रद्युम्न को देते हैं। फिर इंद्रद्युम्न भी सोचते हैं कि अभी इसका किया क्या जाए। ये बात तो सच कह रहे हैं, मैं कितना भी मारूंगा, अगर मार भी दूंगा तो मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि मैं जंग जीत ली, क्योंकि आपकी स्पिरिट जो है, आपका जो दृढ़ता है इसमें, वो तो मेरे
मेरे शत्रु के जैसे ही है, तो मेरा शत्रु मैं तभी इतना प्रसन्न हो जाऊंगा जब भी मैं अपने शत्रु को मारता हूं और शत्रु शरणागति स्वीकार करे या पराजित हो जाए। मगर मैं अगर इनको मारूंगा तो आप शरीर को तो मार दूंगा, मगर आपकी आत्मा जो है, आपका मन है, वो तो एकदम दृढ़ है, वो मेरे सामने ही है और वो उसको मैं पराजित नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे ऐसी प्रसन्नता भी नहीं होगी आपको मारूंगा तो। फिर इंद्रद्युम्न राजा उनको उनके दरबार में लेके आते हैं और उनके जो ऋषि होते हैं, गुरु होते हैं, ऋषि भरत को कहते हैं कि आप कृपा करके इन दोनों को देखिए, आप मैं इसका क्या करूं, ये दोनों ऐसी हठ लेके बैठे हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है दोनों के बीच में। इतने एक दूसरे में एकत्व इनका हो गया है कि इनको कुछ प्रतीत ही नहीं होता है। और भरत ऋषि ने सब कुछ देखा, उनको पता चल गया था कि ये बहुत ही डिफिकल्ट केस है, इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। फिर भी इंद्रद्युम्न राजा के विनती करने से भरत ऋषि ने उनको वहां पे ही शाप दे दिया कि भाई आप दोनों इसी समय, आप इंद्र, आप जो एक चतुर है, आवारा घूमते रहते हैं हमारे राज्य में, और आप अहल्या एक अपने पति को छोड़ के इसके साथ आप गई है, तो आप चारित्रहीन है, तो आप दोनों का इसी समय आपका विनाश हो जाए। और उसी समय वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, वहीं पे उनका शरीर गिर जाता है। और मृत्यु होने से पहले ये दोनों इनसे कहते हैं, ऋषि को कहते हैं कि आपने क्यों ये अपना जो पुण्य है वो क्यों जला दिया। आपके पुण्य जल गए क्योंकि आपने हमें श्राप दे दिया, आपके श्राप से हमारा शरीर ही मरेगा, हमारा मन का क्या। आपने हमको पराजित किया ही नहीं है, आप हमें मार दोगे, शरीर को मार दोगे, मन को कैसे मार पाओगे। मैं मेरा मन तो एक इंद्र बोलता है मेरा मन अहल्या में है, अहल्या बोलती है मेरा मन इंद्र में है, तो हम दोनों को आप पराजित कर ही नहीं पाएंगे, आप शरीर को मार दें। ये विचित्र बात होगी। और फिर वो दोनों मर जाते हैं। और फिर उसके बाद लिखा है कि क्योंकि इनकी आसक्ति इन दोनों में रह गई थी, तो इन दोनों को ऐसा प्रेम था, एकत्व दोनों ने प्राप्त कर लिया था। एक दृष्टि से देखा जाए तो ये सच है, ये ऐसा होना चाहिए। मगर ये पति पत्नी के अलावा और अगर भगवान और भक्त में एकत्व होता है तो फिर हमें भगवान प्राप्त हो सकते हैं। तो ये बढ़िया ऐसा अगर अरेंजमेंट ऐसा हो कि भक्त और भगवान दोनों एक हो जाए तो वह सबसे उत्तम है, क्योंकि वो फिर हमारे जो पुनर्जन्म की जो साइकिल है उसको तोड़ देता है, हमें फिर मोक्ष और हम भगवान के रूप को ही प्राप्त कर लेते हैं, हम उसमें ही समा जाते हैं। तो फिर हमारा, क्योंकि भगवान में अगर हम ऐसा चित्त लगाएंगे जैसे इंद्र ने अहल्या में लगाया, तो अगर भगवान में हम चित्त लगाएंगे तो हमारा भगवान के साथ ही मिलन हो जाएगा, तो फिर हमारा जन्म नहीं होगा, हम भगवान को ही प्राप्त कर लेंगे। तो ये जो इंद्र अहल्या फिर मर गए, फिर दूसरे जन्म में इन दोनों ने एक मृग मृग उनका जोड़ा फिर से मिले जंगल में, हिरण के रूप में दोनों मिले। फिर वो जीवन उन्होंने साथ में जिया, फिर मर गए, फिर वापस एक कछुआ बने, कछुआ का जोड़ा साथ में बना, और फिर वापस उन्होंने जीवन जिया। और फिर उनके बाद एक पुरुष और स्त्री के रूप में उन्होंने जन्म लिया, फिर एक दूसरों ने साथ में ही जन्म लिया और वापस मिले, प्रेम में पड़ गए, इतनी आसक्ति थी। और फिर अंत में एक इंद्र एक ब्राह्मण के रूप में फिर से जन्म हुआ और अहल्या ने फिर एक ब्राह्मणी के घर में जन्म लिया, और फिर उन्होंने तप किया और फिर उनको उनकी सदगति हुई। तो ये कथा बहुत ही सूक्ष्म रूप से हमें कहती है कि ये जो आसक्ति जो हम रखते हैं हमारे किसी व्यक्ति में या किसी वस्तु में, धन में हो, मान में हो, या हमारे संतान में हो, या माता पिता में हो, या भाई बहन किसी में हो, तो वह आसक्ति अगर हम इनके बजाय भगवान में रखें तो सबसे हमारे लिए उत्तम होगा। क्योंकि फिर अगर इंद्र और अहल्या एक दूसरे में आसक्त हुए तो फिर उनका जन्म हुआ दूसरा, ये एक भ्रम कहा गया है, ऐसा नहीं है कि ये अच्छा हुआ है। ये कथा से सूर्यदेव ने यही कहा है कि इन दोनों को माया ने इतना भ्रमित कर दिया था कि उनके फिर जन्म होते गए, हिरण में, फिर कछुए में, फिर पुरुष वापस आए, फिर दुख तो हुआ ही सभी को, ऐसा नहीं है कि दुख नहीं हुआ। मगर ये कहने का प्रयास कथा का है कि हमें आसक्त आसक्त अगर होना है तो हम भगवान में ही आसक्त हो। और
बाकी जो हमारा जो संसार है उसमें हम अनासक्त भाव से जिए और भगवान में आसक्ति रखें। सो ये श्रेष्ठ मैसेज हमें ये कथा से मिलता है, और ये इसका जो माध्यम है कि हमें ये करना कैसे है, कि हमें भगवान में आसक्ति कैसे लानी है और संसार के लिए अनासक्ति कैसे बढ़ानी है, तो वो उसका जवाब है धर्म। धर्म के आधार पे अगर हम जीते हैं तो फिर हम धीरे धीरे हमारी जीवन शैली धर्म के आधार पे, इसलिए तो धर्म में डूज एंड डोंट्स है, उसमें कोड ऑफ कंडक्ट है, मनुस्मृति में, पराशर स्मृति में, धर्मशास्त्र, आपस्तंभ धर्मशास्त्र, बहुत सारे हैं। उसमें कहा जाता है कि हमें कैसे जीना है, कौन से वर्ण को कैसे कैसे जीना है। तो अगर हम ऐसी जीवन शैली अपनाएंगे तो हमारा शुद्धिकरण होता जाएगा, हम धीरे धीरे भगवान के समीप जाएंगे और हमारे में भगवान के प्रति आसक्ति उत्पन्न होएगी धीरे धीरे, और संसार के प्रति हम धीरे धीरे अनासक्त भाव से हम भोगते रहेंगे, और फिर उसमें धीरे धीरे अनासक्त ही हो उनको फिर हम लोग त्याग देंगे, फिर हम उब जाएंगे संसार से। ऐसा ही जीवन धर्म का होता है, ऐसा एक मैसेज होता है, ऐसी जीवन शैली होती है जिससे हमें नेचुरली एक एक टाइम के बाद 50-60 वर्ष के बाद फिर हम उब जाते हैं और फिर हमको मोह नहीं रहता है, और ये होना चाहिए। तो ही वो धर्म कहलाएगा। नहीं तो अगर हम 70 में अगर कुछ मान बढ़ जाता है, धन का लोभ बढ़ जाता है, तो फिर वो तो हमें मार ही देगा, फिर हमें कितने जन्म देगा निरंतर, फिर वापस दुख भोगने आना है। तो सबसे बेस्ट ये है कि हमको ऐसे इंप्रेशंस हमारे मन में डालने हैं जो अच्छे हो, वो एक कर सकते हैं। या तो अगर बहुत इससे भी ऊंचा सामर्थ्य है तो हम उसको कट कर दे, उसको फेंक ही दे, उसको मतलब कुछ अंदर छपने ही ना दे, केवल और केवल भगवान, भज गोविंदम भज गोविंदम, यही हम करते रहे। तो ये सुंदर मैसेज ये कथा से हमें मिला है। ये कथा मैंने योग वशिष्ठ महारामायण से ली है, बहुत सुंदर है, मेरा फेवरेट ग्रंथ है ये, बहुत ही डीप फिलॉसफी वाला ग्रंथ है, और इसमें पूरे ग्रंथ में श्री राम और ऋषि वशिष्ठ का ही पूरा संवाद है, कथाओं से भरपूर है, भरा हुआ है, इतनी कथाएं हैं, इतने मैसेजेस हैं, 3-3.5 हजार पेज का है, बहुत ही सुंदर है। आपको अगर लेना है तो आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मैं तो आपको कहूंगा पढ़िए। अगर आपको ऐसी कथाएं पसंद है तो यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड गोवर्धन मठ चैनल जो है यूट्यूब पे, यू ऑलवेज आई वुड request you to follow that channel, because that channel has the comprehensive knowledge of all the limbs of Vedas and the Vedas itself. So it is meant to create absolute welfare for you and your family as well. So I take your leave today. Thank you very much. Shiva Shankar Pralayankar.